تاریخ اپنے آپ کو دہراتی نہیں بلکہ یہ ایک ایسا سبق ہوتا ہے جسے ہم سیکھنا نہیں چاہتے۔ 2003 میں عراق پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ اس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں جس کی وجہ سے اس پہ حملہ ضروری ہے، اور 2003 کے بعد اب 2026 میں وہی اسکرپٹ، وہی کردار اور وہی بیانیہ پھر سے چل رہا ہے، لیکن اب کی بار نشانہ ایران ہے۔ TNS دا نوید شو میں آج ہم اس بات کا کھوج لگانے کی کوشش کریں گے کہ امریکہ ہر اس جگہ پہ رجیم کیوں چینج کرنا چاہتا ہے جہاں پہ یا تو تیل کے کنویں ہوتے ہیں اور یا وہ ملک اسرائیل کی بالادستی کو تسلیم کرنے سے انکاری ہوتا ہے۔ فیبرری 2003 اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا وہ ہال جہاں پہ دنیا کی قسمت کے فیصلے ہونے تھے، اور اس وقت امریکی وزیر خارجہ کولن پاول نے ایک شیشی ہوا میں لہراتے ہوئے کہا کہ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ صدام حسین کے پاس ایسے حیاتیاتی اور خطرناک ہتھیار ہیں کہ وہ دنیا میں بہت زیادہ نقصان کر سکتا ہے اور بہت سے انسان پل بھر میں ختم ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ تاریخ کا سیاہ ترین جھوٹ تھا کہ وہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن آج تک 20 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد بھی کبھی نہیں مل سکتے۔ کیا یہ سازش ہے یا محض اتفاق کہ وہی ایپیسوڈ ایران میں آج ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے؟ وہی کردار، وہی بیانیہ، وہی اسکرپٹ اور وہی لیم ایکسکیوزز، وہی ریزنز۔ تاریخ کے ان چھپے ہوئے پیجز کو الٹ کر ہی ہم یہ پتہ کر سکتے ہیں کہ اس سازش کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے۔ صرف کولن پاول ہی نہیں بلکہ اس وقت کی پوری بش انتظامیہ اس سفید جھوٹ میں پورے سسٹم کے ساتھ کھڑی تھی، اور اس وقت کے صدر بش نے ایول ایکسس شمالی کوریا، ایران اور عراق کو قرار دیا تھا۔ نہ صرف انہوں نے یہ کہا کہ یہ تینوں ملک بدی کے محور ہیں، بلکہ وہ دنیا میں یہ کیس بھی اسٹیبلش کرنے لگے کہ عراق کے صدر صدام حسین القاعدہ کا حصہ ہیں، اور نہ صرف وہ اسامہ بن لادن کو سپورٹ کرتے ہیں بلکہ اس پورے سسٹم کے شراکت دار ہیں، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں دہشت گردی پھیل رہی ہے۔ لیکن تاریخ نے اس سارے کھیل کو نہ صرف بری طرح سے ایکسپوز کیا بلکہ ان کو بعد میں شرمندگی بھی اٹھانا پڑی۔ کولن پاول نے 2003 میں یونائٹڈ نیشنز میں کی جانے والی اپنی تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ میں اس تقریر پر بہت شرمندہ ہوں، وہ میرے کیریئر پر سب سے بڑا داغ ہے، کیونکہ عراق میں کوئی کیمیائی ہتھیار، کوئی ایٹامک ویپنز، کوئی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن اور کچھ بھی ایسا نہیں تھا جس کی وجہ سے اس کو ایک دہشت گرد ملک قرار دیا جاتا اور اس کے اوپر جنگ مسلط کی جاتی۔ کولن پاول نے اس وقت دنیا سے معافی مانگی اور یہ کہا کہ ہمیں CIA نے گمراہ کیا تھا۔ امریکن انٹیلیجنس کی یہ ناکامی ہی نہ صرف ہمارے اس موقف کی وجہ بنی جس کی وجہ سے ہمیں عراق پہ حملہ کرنا پڑا، بلکہ CIA نے ہمیں گمراہ کن شواہد دیے جو ایک بڑی سازش پر مبنی تھے اور من گھڑت ثبوت دیے، جس کی وجہ سے ہم نے ان کے خلاف جنگ لڑنا شروع کر دی۔ اس وقت کے CIA کے ڈائریکٹر جارج نے کہا تھا کہ عراق میں ایٹامک ویپنز یا ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کی موجودگی ایک یقینی بات ہے، لیکن بعد میں سینٹ میں پیش ہونے والی رپورٹ کے مطابق وہاں پہ ایسا کچھ نہیں نکلا تھا، اور اس انٹیلیجنس کو بش انتظامیہ نے سیاسی مقاصد کے لیے توڑ مروڑ کر پیش کیا تھا۔ 2004 میں ڈیولفر رپورٹ میں یہ واضح طور پر اسٹیبلش ہوا کہ عراق میں کسی قسم کا
वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम फाल नहीं था। वहाँ पे ऐसा कोई मामला नहीं था जिससे ऐसे हथियार बनाए जा रहे थे कि दुनिया खतरे से दो चार हो जाती। जॉर्ज बुश के तकरीबन 2 दिहाइयों के बाद ट्रंप भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। उन्होंने ईरान के साथ एटॉमिक एग्रीमेंट को ख़त्म करते हुए ये कहा कि ईरान एक दहशतगर्द मुल्क है। अगर हम ईरान पे हमला ना करते तो वो हम पे हमला कर देते। अगर हम उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय ना करते तो वो इजराइल और अमेरिका को निशाना बनाता और पूरी दुनिया एक खतरे के साथ दो चार हो जाती। हालांकि बहुत सारे आलमी इदारों ने ईरान को इस हवाले से क्लीन चिट दे रखी थी कि उधर किसी भी तरह के वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन की तैयारी नहीं हो रही। लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू ने इस सारी क्लीन चिट को हवा में उड़ा दिया। ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई शहीद ने एक मजहबी फतवा भी जारी किया था जिसके मुताबिक इस तरह के हथियार नहीं बनाए जाएंगे जिससे इंसानियत खतरे से दो चार हो जाए, और वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, कीमियाई हथियार या न्यूक्लियर वेपन्स, इस तरह की कोई भी चीज़ ना सिर्फ ज़ख़ीरा करने से गुरेज किया जाएगा बल्कि बनाने और किसी दूसरे को सप्लाई करने से भी इज्तनाब बरता जाएगा। आयतुल्ला अली खामनाई ने एटमी हथियारों की तैयारी को हराम करार दिया था और अपने मुल्क में पाबंदी लगाई थी। IAEA के मुताबिक ईरान ने 2015 तक अमेरिका के साथ इस एग्रीमेंट की पासदारी की और एटॉमिक वेपन्स के खिलाफ तब तक खड़ा रहा जब तक अमेरिका खुद उस मुआहदे से पीछे नहीं हट गया। और ईरान का हमेशा से ये कहना है कि उसका एटॉमिक प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ बिजली की पैदावार और उसके अलावा तिब्बी शोबे के मकासद हासिल करने के लिए है। लेकिन जब इजराइल ने अमेरिका को उकसाया तो ये ईरान पर टूट पड़े और साथ साथ मिसाइल से मुंह की भी खाई। सवाल ये है कि अगर सबूत नहीं होते तो फिर ऐसा क्यों किया जाता है? मशरिक़ वुस्ता को हमेशा आग में क्यों झोंका जाता है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी तल अवीव के मफादात के गिर्द घूमती है। अमेरिका इजराइल के इंटरेस्ट का ठेकेदार है और सो कॉल्ड मुहाफिज भी है। नेतन्याहू कई बार कार्टून्स और मैप्स के ज़रिए से ये ढोंग रचा चुके हैं कि ईरान का एटम बॉम्ब यहाँ पे पड़ा है और ये वो इलाका है जहाँ पे एटमी तनसीबात में दुनिया को खतरे से दो चार करने वाले सो कॉल्ड वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन बनाए जा रहे हैं। लेकिन इसमें हकीकत सिफर होती है और ये सच हमेशा कुछ ही अरसे के बाद दुनिया के सामने आ जाता है। ईरान में इस वक्त इराक जैसा खेल ही खेला जा रहा है और अमेरिका सिर्फ और सिर्फ ये चाह रहा होता है कि हमारा मंजूर नज़र हुक्मरान इस मुल्क पर हुकूमत करे। इनकी सबसे बड़ी इंटेंशन और बदनीयती रजीम चेंज की ख्वाहिश पर मबनी होती है। अमेरिका और इजराइल बज़ाहिर दुनिया को ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि हम इस मुल्क पर हमला आवर इसलिए हुए हैं कि वहाँ पे डेमोक्रेसी लाई जाए और जमहूरियत का बोल बाला हो। लेकिन असल में वो उस मुल्क की दिफाई सलाहियत को मफलूज करके अपना एक पपेट ला के उस निज़ाम पर बिठा रहे होते हैं। जब हम इस पूरे केस को डिग आउट करते हैं तो अमेरिका पर इजरायली प्रेशर इसकी पहली वजह है और नंबर 2 पर होता है रिजीम चेंज, और तीसरी बुनियादी वजह अमेरिका या इजराइल के इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हैं। अमेरिका और इजराइल के मुआशी मफादात को मद्देनज़र रखा जाए तो ईरानियन तेल और गैस के ज़खायर से भी इनके मुंह से रालें टपकती हैं और ये इस तेल पर काबिज होना चाहते हैं। चौथी और आखिरी रीज़न है ईरान की जियोपॉलिटिकल अहमियत। ये भी ईरान को अमेरिका और इजराइल के लिए अहम हदफ बनाती है।
इस पूरे खेल में ग्रेटर इजराइल का मंसूबा भी एक बड़ा साजिशी मंसूबा है, जिसके तहत इजराइल के स्ट्रेटजिक थिंक टैंक्स ने कई सालों से ये मंसूबा बनाए रखा कि मशरिक़ वुस्ता के ममालिक और बिलखुसूस ईरान को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाए, ताकि पूरे रीजन में इजराइल का तसल्लुत बरकरार रहे और उसी की हुक्मरानी और हाकमियत इन तमाम मुस्लिम ममालिक के ऊपर राइज हो। इराक से कीमियाई हथियार ना मिल सके, लेकिन बुनियादी इंसानी हुकूक की कई तंजीमों की तरफ से ये निशानदही की गई कि इत्तेहादी अफवाज की जानिब से इराक में सफ़ेद फास्फोरस समेत कई कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिससे इंसानी जानों को शदीद खतरात लाहक हुए और इराकी अवाम का कत्लेआम किया गया। अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज इराक में जंगी जराइम में मुलव्विस रहीं और जंगी जराइम का वही तरीक़ाकार ईरान में भी सामने आया, जब बच्चियों के स्कूल्स और हस्पतालों को निशाना बनाया गया और जनूबी लेबनान में भी इजराइल ने ईरान के साथ साथ हमलावर होकर फास्फोरस और कई दीगर खतरनाक मोहलिक कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल किया। मेन स्ट्रीम मीडिया बिलखुसूस CNN और फॉक्स न्यूज़ ने उस वक्त अवाम को यही झूठ बेचा कि इराक दुनिया का खतरनाक तरीन और सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है। अवाम ने उस झूठ को हकीकत समझकर खरीदना शुरू कर दिया। आज वही मीडिया दोबारा से ईरान के खिलाफ सरकारी मशीनरी बनते हुए प्रोपेगेंडा टूल बन चुका है और दोबारा से ओपिनियन मेकिंग की जा रही है कि ईरान ही शायद दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है। लेकिन क्या तारीख वाकई अपने आप को दोहराती है, या हम तारीख से सबक सीखना नहीं चाहते और उसको हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ का नाम देते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब हमें अमेरिका और इजराइल का ट्रैक रिकॉर्ड देखकर हासिल करने होंगे। हमें यह देखना होगा कि गुज़िश्ता चंद दहाइयों में इन सुपर पावर्स और तरक्की याफ्ता ममालिक ने डेवलपिंग कंट्रीज को किस तरह से अपना गुलाम बनाने की कोशिश की और किस तरह से अपने इन अज़ाइम को अमली जामा पहनाने की कोशिश की, जिसके तहत वो दुनिया पर अपना तसल्लुत कायम रख सके। अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक हथियारों के इंस्पेक्टर स्कॉट रिटर ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि इराक में वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम इंस्पेक्शन मुकम्मल कर चुके हैं, वहाँ पर हमला करने की या इराक के साथ जंग लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन स्कॉट रिटर को खामोश करवा दिया गया और उन्हें ये कहा गया कि आपके हक़ाइक़ हमारे हक़ाइक़ के साथ मुतसादिम हैं। हम खुद हमला करके इराक के उन वेपन्स को तबाही की अलामत बना देंगे। ईरान की एटमी तनसीबात दुनिया में सबसे ज़्यादा मॉनिटर करने वाली जगह हैं और वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो दुनिया के तमाम इदारों के सामने था और सामने है। इराक में जो कुछ भी हुआ था वो गलती नहीं थी, वो जुर्म है। ईरान में आज जो कुछ भी हो रहा है वो उसी जुर्म की अगली किस्त है। अब हमें तारीख से मुंह मोड़ने की बजाय तारीख से सीखना होगा और देखना होगा कि कहीं अगली बार हम ही तो निशाने पर नहीं। TNS द नवीद शो में कहानियों का सिलसिला जारी रहेगा, रोशनी का सिलसिला, शऊर का सिलसिला, आगही का सिलसिला, जानने और जांचने का सिलसिला, परखने का सिलसिला, बेनकाब करने का सिलसिला। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा।